सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एंटायर प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ आंसर शीट कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। एंड मेनी एस्पिरेंट्स आर पर्सनली मैसेज मी रिगार्डिंग द सेम कि सर हाउ टू अप्लाई फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स, which one is better to apply through RTI mode or through institute, right? If we go through institute, how many charges will be there, and if we apply through RTI mode, then what is the benefits, and how to apply for a demand draft, and after that how to send the requisite documents to institute, and what is the duration after application of certified copy of answer sheet, right? And after how many days certified copy of answer sheet will be obtained. So all this matter I have made a good video, and I am thrilled to bring you a comprehensive guide on obtaining certified copies of your answer sheets, both for CMA intermediate and CMA final examinations through the RTI online portal. As aspirants, I personally understand the importance of reviewing our exam performance to grow and improve, right? So that's why I have crafted this step-by-step video to empower you with the knowledge and essential tools that needed to access your answer sheet hassle-free. From filing out the entire application to navigating the RTI online portal, and even tackling the nitty-gritty details, like you can say how to obtain a demand draft and then sending the same to the institute. For all such matter, I have got you covered every step of the way, right? So first and most importantly, अगर हम लोग RTI के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फास्ट RTI ऑनलाइन इस वेबसाइट को जाकर, राइट, इस वेबसाइट को एक्सेस करके अप्लाई करना है. फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देन पब्लिक अथॉरिटी होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट. देन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे कि एस्पिरेंट्स का नेम, एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, राइट, एंड कौन सा टर्म, सपोज जून टर्म या दिसंबर टर्म, वो टर्म लिखना है. एंड देन व्हिच इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल वो भी लिखना है. एंड व्हिच सब्जेक्ट यू अप्लाइड फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ आंसर शीट, जैसे कि सपोज इंटरमीडिएट के अंदर जो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नेम लिखना है एंड सब्जेक्ट का कोड लिखना है, राइट, अच्छे से. एंड आफ्टर दैट RTI will ask for to attach the required documents, like तो आपको एक वर्ड फाइल के अंदर एक पूरे अच्छे से एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन लिखना है. डियर सर, आई नीड टू अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स थ्रू RTI mode, right. Then I have given my registration number and my roll number, name, address, ये सब. And then you need to mention at last subject and name of the subject and subject code. After that, in second page, word file के अंदर second page के अंदर you need to mention your admit card, right. You need to mention your recent जो एग्जाम दिए थे, given examination का admit card को mention करना है, then upload करना है. After that, you need to pay ₹10 only. If you apply through RTI mode, then you need to pay only ₹10 at the time of initial applications. And after that, once you submit your applications, then RTI will send you your application registration number so that you can log in to check the RTI status, right. And after 7 to 10 days के बाद RTI से एक मैसेज आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड किया गया है इंस्टीट्यूट को. एंड देन यहाँ पर आपका
ये है आरटीआई का स्टेटस, मैंने अप्लाई किया था एक कैंडिडेट का। तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, नेम आएगा, रिसीव डेट, अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कौन है, जैसे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। देन डेट ऑफ एक्शंस। देन यहाँ पर आरटीआई से रिप्लाई आएगा, मेंशन किया गया होगा, यू आर एडवाइज्ड to deposit an amount of rupees 320 only through a demand draft drawn in favor of the Institute of Cost Accountants of India, payable at Kolkata, to enable us to provide you the required information. Right? Then please write the RTA application number and registration number of the aspirant along with the draft, and then you need to send the same via post at given address. ये एड्रेस से सेंड करना है. Then the above fee is towards the fee for the cost of giving the information that arrived after calculating photocopy charges at the rate ₹2 per page multiplied by number of pages, right? And suppose 30 pages typically in an answer book, and applicable speed post charges, and this is also as per the section 7(3) of the RTI Act, right? And यहाँ पर भी मेंशन होगा, scripts will be given as and when the same is made available by the examination department after their due processing time. तो ऐसे ही देन उसके बाद हमको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई करना है. डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई किससे करेंगे? सी हियर आई हैव अप्लाइड फॉर ए कैंडिडेट फॉर ए डिमांड ड्राफ्ट. तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई करने के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी बैंक से हम लोग डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट का एक फॉर्म मिलता है, तो फॉर्म फिलअप करना है एंड पूरे अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सपोज हम लोगों को डिमांड ड्राफ्ट किसको पे करना है, इंस्टीट्यूट को पे करना है, तो इंस्टीट्यूट का जो नेम है तो नेम को पूरे अच्छे से लिखना है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट. देन रिक्विजिट फी यहाँ पर 320 लिखा गया है, तो यहाँ पर 320. एंड बैंक के केस में क्या होता है ना, बैंक लोग एक नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, एक्सचेंज फीस, राइट, टू अप्लाई फॉर डीडी, एंड दैट विल फॉल बिटवीन 20 से 25 रुपया लगता है एक्स्ट्रा चार्जेस, तो वो चार्जेस भी देना पड़ता है, राइट. एंड देन अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चे लोगों का डाउट होता है कि जो एप्लीकेंट का नेम नॉट नेसेसरीली कि जो एप्लीकेंट का नेम वो डिमांड ड्राफ्ट के अंदर मेंशन होगा, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एप्लीकेंट है वो उसका नाम ही मेंशन रहेगा. वो यहाँ पर मेरा नाम इसलिए आ रहा है कि मेरा पर्सनल अकाउंट से डेबिट हुआ है, राइट. तो मेरा जो कार्ड था डेबिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड के थ्रू मैंने अप्लाई किया था, इसलिए मेरा नाम यहाँ पर आ गया है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एप्लीकेंट है उसका नाम ही यहाँ पर मेंशन होगा, तो जिसका भी अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा उसका नाम इसमें रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा. बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम जो है वो अच्छे से लिखना है, राइट. देन ड्रॉई का एड्रेस ये पूरे अच्छे से लिखना है, राइट. Then bank will issue a demand draft and make sure that branch manager का signature होना चाहिए इसमें, and with seal and signature, seal with stamp, ओके. तो ये होना है. तो ऐसे ही डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई करते हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट. तो डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई करने के बाद यू नीड टू सेंड द सेम टू द इंस्टीट्यूट, राइट. तो ये पेज को प्रिंट करके इसको डिमांड ड्राफ्ट के साथ एंड एक एप्लीकेशन भी प्रिंट करके सेंड करना है इंस्टीट्यूट को. देन इंस्टीट्यूट आफ्टर वेरिफिकेशन दे विल सेंड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट दैट यू हैव अप्लाइड, एंड यू नीड टू कीप पेशेंस बिकॉज इसमें टाइम लगता है. अप्लाई करने के बाद एंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद 2 महीने, लगभग 2 महीने लग जाते हैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट आने में. तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस, राइट. तो बहुत इजी एंड सिंपल प्रोसेस है, ये फॉलो करना है. एंड आरटीआई के थ्रू अगर अप्लाई करेंगे तो चार्जेस बहुत लेस होता है, राइट. तो पर पेजेस वाइज ₹2 सिर्फ आता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो
मिनिमम ₹500 चार्जेस लग जाएगा पर पेपर. Okay, so you need to apply for RTI, and this is entire step-by-step guidelines regarding how to apply for a certified copy of answer sheet. Okay, so thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.